أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سد الله كل غالب ومطلوب كل طالب كرارا غير فرار صاحب ذو الفقار خصيم الجنة والنار وفاته خيبر خندق بدر حنین علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آج کے دن جمعے کا دن ہے اور سورہ مومنون پڑھنے کی تاکید ہے. فلاح پا گئے وہ مومنین. قد افلاح المؤمنین. کون سے مومنین فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے، خوف رکھتے. جب اس کی بلند و بالا بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں تو خشیت الہی کی کیفیت بدن پہ طاری ہوتی ہے. اور ہر مومن نہیں ہے. مومن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علی مل گئے، یہ تو ہماری قسمت سے ملا ہے. ہمیں علی ہماری قسمت سے ملا ہے. علی سے محبت کرنے میں ہم نے کہاں کمی کی، کہاں چھوڑا علی کو، کہاں چھوڑا. صرف مجلسوں میں ہی علی کو پکڑا کہ مصلی پہ بھی وہ کیفیت پیدا کی. صرف علی کو ذکر میں سن کے نعرے لگائے یا سخاوت میں بھی وہ کیفیت پیدا کی. یا علی کو صرف فضائل میں ڈھونڈا یا تلاوت میں بھی وہ مزے لیے جو علی نماز اور قرآن میں لیا کرتے تھے. نعرہ حیدری یا علی، صفدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یہ مناسبت سے آج تھوڑا سا ذکر کہ جمعہ بھی ہے. جمعہ منتظروں کا دن ہے. دیکھیے قرآن جہاں عام میسیج کنورٹ کرتا ہے، عام میسیج فارورڈ کرتا ہے، ایک سادہ پیغام دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگوں. اور جب کوئی خاص میسیج ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور اس دور کے لیے، اس دور میں جو خاص مومنین ہیں ان کے لیے خدا کہتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ایک میسیج ہے عام لوگوں کے لیے، ایک میسیج ہے یا ایھا الذین آمنو یعنی اے علی والو، کیونکہ ایمان اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے دل کے ہاں خانے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے. وہی مومن ہے، دوسرا مومن نہیں. ہاں اس میں بھی کیٹیگری ہے. پھر ہم حیران ہو گئے ریسنٹلی یہ بات سن کے کہ شیعوں میں بھی 13 کیٹیگری ہے. اس میں سے ایک جائے گا، زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے. یا اللہ ایسے کیسے؟ اور اس میں بہت باریکی ہے. ہم ایزیسٹ وے پہ جانے والے لوگ ہیں. اس میں خداوند کریم نے مومنین کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ جمعے کا دن ہے. پھر خدا کہہ رہا ہے کہ خدا بھی 3 کام کرتا ہے. خدا درود بھیجتا ہے، خدا لعنت بھیجتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے. ہم بھی درود بھیجتے ہیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. خدا بھی انتظار کرتا ہے. جمعہ ہے، ایک جمعہ آئے گا، یوسف زہرا آ جائیں گے. اور ان کی محبت اور ان کی معرفت کی تشنگی کے لیے یہ حدیث رسول کا بھی ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من مات حب آل محمد فقط مات شریعہ. بارہا سنتے ہیں من ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جس نے وقت کی حجت کو، امام کو نہیں پہچانا. بہت ضروری ہے ان کی پہچان. ان کی پہچان بہت ضروری ہے. 9 لاکھ کے لشکر میں پہچان حر کو ہوئی. لعنت اللہ بنتے بنتے علیہ السلام بن گیا. پہچان اتنی ضروری ہے. ورنہ نام سے کیا ہوتا ہے؟ کیا شمر نہیں جانتا تھا کہ امام حسین کون ہے؟ کیا ابن ملجم نہیں جانتا تھا مولا کائنات کون ہے؟ بلکہ محبت کا تو دعویٰ کرتا تھا بہت زیادہ. لیکن دیکھیے اس لیے کہا گیا کہ حب مال دنیا کے لیے بہت، حب مال اور حب حکومت یہ بہت گندی شے ہے. یہ جو ہے شیطان حملہ کیسے کرتا ہے انسان کے نفوس کے اوپر، یہی تو ہے تمام. اور آج وہ دور ہے جس دور کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں. طالب جوہری کی کتاب ہے انتظار امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے علامات. اگر آپ دیکھیں، میرا اور آپ کا مولا آنے والا ہے اور میں اور آپ ہی تیار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تیاری ضروری. دیکھیے تیاری ہوئی ہے، مجلس میں بلایا گیا. ہر چیز کے لیے، پروگرام کے لیے تیاری ہوتی ہے. اللہ نے جو آخری مارے کا رکھا ہے اس کی تیاری ہے، امام کا انتظار. اور جمعے کا دن خاص کر ہر ایک کو چاہیے. جن کے کوئی ہے نہیں وہ جمعے کے دن ہر چیز صاف کرتے ہیں. پڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. جن کا کوئی آنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی پردہ غیبت میں نہیں ہے، جن کا ہے انہیں پرواہ نہیں ہے. صلوات برما محمد وآل محمد جیسے ہو فصل بہار کا عالم، امام عصر تیرے انتظار کا عالم.
ان کی انتظار کی کیفیتیں ہیں. انتظار کرنے والا پلیدگیوں سے بچ جاتا ہے, انتظار کرنے والا خسارے سے بچ جاتا ہے, انتظار خدا بھی کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو محسوس کریں. اگر ہم انتظار نہیں کریں گے تو ہم کہاں رہیں گے؟ انتظار دیکھیے, اگر دنیا میں سارے ملک میں اگر کوئی ملک ہے جو امام کا انتظار ریئل میں کر رہا ہے تو وہ ایران ہے. ایران وہاں پہ جو احسان ہوتے ہیں تڑپ کے دعائے ندبہ میں, کہ جیسے ہم اپنے دیکھتے ہیں اکثر ہم اپنے عزیزوں کی میت پہ جیسے روتے ہیں نا, اس طرح وہ لوگ جیسے فاطمہ الزہرا نے کہا تھا ایسے رو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے ایک لوگ. یہ محبت ہے امام سے. سب محبتوں کو پیچھے ڈالیں, امام کی محبت کو آگے رکھیں. ضروری ہے اس دور میں جہاں پلید کی چیزیں اور شیطان نفوس کے اوپر اس قدر, وہ بھی ساتھ ساتھ برائی کا بھی ساتھ ساتھ ہے. اسی لیے تو خداوند کریم نے ہمارے لیے 14 معصومین کا وسیلہ رکھا. یہ مجلس کیوں ہے کہ یہ عام انسان نہیں تھے, یہ مسلمان نہیں, یہ بلکہ مومن اور دعائے فاطمہ الزہرا بن کے دنیا میں آئے تھے, آزادار تھے, بانی مجلس تھے, اچھے اخلاق پر تھے. مجلس یعنی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, خدا احسان نہیں رکھتا, شہزادی احسان نہیں رکھتی. مومنین ہے تو بھی زندہ ہے. مجلس کے ذریعے کس کو جا رہے ثواب کے؟ روح تو زندہ ہے. اب جن کی روحیں بھی مر جائیں ان کے پاس کوئی سارے ثواب نہیں ہوتا, لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں, ہم اور ہمارا خدا عالم شکم میں, ہم اور ہمارا خدا عالم دنیا میں, ہم اور ہمارے ساری کائنات اور رشتہ دار, پھر عالم برزخ میں ہم اور ہمارا خدا, پھر عالم محشر میں ہم اور ہمارا خدا. ایک جگہ فری چھوڑا تھا تو اتنے فری ہو گئے. ہر جگہ تو وہ ہمارے ساتھ ہے مسلسل. اسی لیے کل جو میں خطبہ پڑھنے والی اس میں سے تھوڑے جملے آپ کو بیان کر دوں. اسی لیے مولا حسن کو خط لکھتے ہوئے امام علی نے وصیت نمبر 31 میں ایک جملہ کہا تھا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, کیونکہ میں گزرنے والے لوگوں کو اچھی طریقے سے جان چکا ہوں. کیونکہ ایکسپیرینس جو ہے نا, مولا بتا رہے ہیں دنیا کا ایکسپیرینس, اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پورے گزرے ہوئے لوگوں سے اس طریقے سے سبق لیا, غور کیا, حالات کو دیکھا, اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ دنیا کیا ہے. اسی لیے میں صرف اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں. علی جیسا کسی نے دنیا کو محسوس نہیں کیا. لوگ دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. علی نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے, کیونکہ علی نے دنیا کو غور کیا اور کہا کہ یہ غور کرنا اب مجھے کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ میں کسی اور کے بارے میں کچھ کہوں. میرے پاس خود میرے لیے وقت کم ہے, لیکن بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا ہی ٹکڑا ہو, تم میرا ہی حصہ ہو, تم وہ ہو, تم میں ہی ہوں, میں تم ہوں, تم میں ہو. تمہارا نقصان میرا نقصان, تمہارا خسارہ میرا خسارہ, تمہاری موت میری موت. اسی لیے تم کو یہ وصیت کر رہا ہوں کیونکہ تم چھوٹے ہو, اور جب نفس چھوٹا ہوتا ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا نفس ایک کھیتی جیسا ہوتا ہے, جو بیج ڈالو وہ اگ جائے گا. اس سے پہلے کہ میں فنا کی گھاٹ چڑھ جاؤں, اس سے پہلے کہ موت میرے دامنگیر ہو جائے, میں یہ کام جلدی میں کر رہا ہوں اور تجربے تم کو لکھ کے دے رہا ہوں. اس میں بہت بڑا ضخیم لیٹر میں مولا نے جو سب سے بیوٹیفل جملہ کہا, یہ جملہ کہا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. آج تو تقوی کیا ہے؟ ڈکشنری کا ورڈ ہے. صبر کیا ہے عزیزم؟ ڈکشنری کا ورڈ ہے. ہمارے پاس سارے اچھے اچھے کام ڈکشنری میں ہو گئے ہیں, یا ایسے ہی بیٹھ کے ایک بندہ, ایک کنیزان زہرا زندگی بھر علی کے فضائل پہ چیختی رہے, نعرے لگاتی رہے, لیکن ایک کام بھی وہ نہ کرے جو علی نے کیا, تو سوچے گی کتنی جھوٹی محبت ہوگی ہماری. سوچیے محبت جس سے ہوتی ہے نا, ان کی جیسے کام کرنے کی طرف. دیکھیے آپ ندیم سرور سے محبت لوگوں کو کیسی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے رومال, ان کے جو ہاتھ میں پہنتے ہیں, جو لگاتے ہیں, سارا کچھ. ایک انسان سے محبت میں تم اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہو, مولا سے محبت میں کیوں نہیں بنتے؟ مولا جیسے کیوں نہیں بنتے؟ محبت ذرا سی نرم ہو مٹی بڑی زرخیز ہے صافی. وہ لوگ کہ جنہیں شیطان نے اس قدر گمراہ کیا ہوا ہے, ہم میں یہ وہ لوگ, وہ کہیں باہر نہیں ہے, نہ خدا مجھ سے باہر ہے نہ آپ سے, نہ شیطان مجھ سے باہر ہے نہ آپ سے. جب غیظ غضب آ جاتا ہے تو وہ نکل آتا ہے, جب صبر اور استقامت درگزر صلاحیتیں آتی ہے تو اللہ, کیونکہ اللہ تو اب تقریباً ہم طالب علم ہیں, لیکن جب بڑے بڑے اسکالرس کی مجلس سے سنتے ہیں تو ہماری عقل ابھی خیرہ ہو جاتی ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز حیرانی کی ہے تو وہ صرف علم ہے.
जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतना हैरानी बढ़ती चली जाएगी। ऐन बलूक ऐन अबनाउल बुलूक, कहाँ है बादशाह, कहाँ है उनके तख्तो ताज। ऐ गोरे गरीबा पे नजर डाल, इबरत खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ आज कहाँ है तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था जो गुरूर आज कहाँ है, ऐ कासे सरबोल तेरा ताज कहाँ है। जब खोपड़ी निकाली जाएगी खबर से तो नहीं पता चलेगा कि गुलाम की है कि आका की है। ये जोश मलियाबादी बताते हैं। और फिक्र मुकाम ईसा अलैहिस्सलाम ने एक और बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे अइम्मा मासूमीन ने हमें बताया कि कैसे जिंदगी गुजारे। देखिए खुदा तक पहुंचने के लिए लोग अल्लाह को छोड़ कर खुदा तक पहुंचने की बेवकूफ़ी करते, जबकि खुदा खुदा होते हुए इनके वसीले के बगैर ना कुरान भेजता है, ना इनके बगैर काबे को लाया कर सजदा बनाता है, ना इनके बगैर बाय बिस्मिल्लाह कुरान कोई होता है, ना इनके बगैर रसूल का कोई मददगार होता है, ना इनके बगैर रसूल को कोई बेटे देने वाला होता है। खुदा और रसूल दोनों जिसके, और खुद हैरान है ये बात कि रसूल अकरम ने फरमाया या अली तुझे या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। अब कोई अली की मोहब्बत का दावा करता रहे वो तो हमें इजाजत है ही नहीं। हाँ, जितना क्लोज होने की कोशिश करेंगे ना उतने कमालात हमारे बढ़ेंगे। अली को मेरी और आपकी जरूरत नहीं है, अल्लाह को मेरी और आपकी इबादत की जरूरत है, लेकिन मैं और आप मोहताज है अली के भी, अल्लाह के भी, इमाम ज़माना के भी, क्योंकि अल्लाह है। किसने देखा है? कोई देखा अल्लाह को? लेकिन अल्लाह को तो हम इतना क्लोज समझते हैं, जबकि वो भी हमसे इतना क्लोज है। या मन हुआ अक़रबु इलैया मिन हब्लिल वरीद, क्लोज है। हम तो कहते हैं जब गुनाह करते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे वो गफ्फार है, रहीम है, माफ़ करता है, भूल जाते हैं, सीसी कैमरे से डर जाते हैं, लेकिन वो यही है चिपका हुआ, भूल जाते हैं। वो है, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मेरे मौला ने दावा किया मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसको मैंने देखा ही नहीं। ये हमारे और आपके लिए हैरान कुन बात है कि कोई अगर कोई कहे अल्लाह तू है, तू था, तू है, तू रहेगा, ये है, था, नहीं, वो, ये सब उसके लिए कुछ काम नहीं, क्योंकि वो ऐसा है कि जिसके लिए ये लफ्ज़ तो इंसान, और हम इतने मजबूर हैं कि हम उस ज़ात के लिए अल्लाह जो कहते हैं मजबूरी है, वरना उसके तो कितने नाम, वो बगैर नाम के है, उसको किसी नाम की क्या जरूरत है? वो तो मुझे और आपको जरूरत है कोई नाम के नाम, क्योंकि वजूद का कोई मतलब नहीं है, वजूद इंसान को कोई माने नहीं रखता। अगर आप एक अननोन पर्सन को लाके यहाँ बिठाएंगे, अब वो मजलिस अच्छी पढ़ के चली जाए, आप पूछेंगे बानी से इनका क्या नाम है, हम मोहताज है नाम के, हम डिपेंड करते हैं नाम पर कि हमारी पहचान हो। उसको क्या जरूरत है किसी नाम की, लेकिन उसने अपने इतने नाम रखे क्योंकि उसने कहा अगर तुमको रहीमी चाहिए तो मैं रहीमान हूँ, अगर तुमको करीम चाहिए तो मैं करीम हूँ, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हो गए ना घबराओ, वो कहता मैं गुनहगार हूँ का परवरदिगार हूँ। अल्लाहु अकबर। गुनाह करके परेशान ना हो जाना, हो गया क्योंकि शैतान जो लगा हुआ है, तौबा करके आओ मेरी राह पे, सच्चे बन जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं गफ्फार हूँ। अगर कोई बंदा गुनाह ही ना करता तो उसकी गफ्फारियत किसके काम आती, उसकी रहमानियत किसके काम आती? सोचिए, गौर करें। वो ये कर चाहता है आओ किसी नाम से भी पुकारो, हाँ, लेकिन ये नाम जो मैंने रखे सत्तार, गफ्फार, रहमान, ये सारे नाम जो है ना, इन नामों पे अगर गौर करें तो थोड़ी थोड़ी कैफियतें हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। कई लोग दुनिया में हैं जो करीम कहलाते हैं, कई लोग दुनिया में हैं जो रहीम कहलाते हैं, यानी उनकी सिफात की वजह से खुदा की सिफात जलाली को, खुदा के सिफात जमाली को, खुदा के सिफात को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि खुदा ने भी कह दिया है कि मैं तुम्हें दुनिया में इसलिए बनाया। सूरह दहर में खुदा फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा। ऐ इंसान तो कुछ ना था, हमने तुझे बनाया, देखता, बोलता, सुनता बनाया, शुक्र करे, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया। इसी सूरह में आगे बढ़ के इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, बस ये है हमारी मीज़ान कि हम शुक्र करते हैं जिस हालत में खुदा रखे या कुफ्र करते हैं। बस ये दो चीजें हैं। नेमतें अगर किसी को ज्यादा नेमत मिल रही है तो या खुदा उन्हें दुनिया में ही देना चाहता है, अगर नेकोकार है ज्यादा मिल रही है तो वो शुक्र ज्यादा करते हैं। अगर गुनहगार हराम से दौलत आ रही है तो उनका घड़ा पाप का यहीं भरने वाला है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, खुदा बड़ा आदिल है, इसीलिए कहा कि इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। कौन है तुम में जो शुक्र करे? नेमतों की शुक्र में नेमतों को रखा और कुफ्र में नेमतों को सलब कर दिया। ये दो ही चीजें हैं।
हर हाल में शुक्र। और आप अगर इसको देखें तो हमारे अम्बिया 1,24,000 अम्बिया की ज़िंदगी को आप कभी कभी सोचिए अजीज़, हम 15 मिनट दे अपने मौला के लिए, इल्म हासिल करें। ऐसे अंधेरों में नहीं जाते। मोबाइल फ़ोन का इल्म है, गाड़ियों का इल्म है, टू व्हीलरों का इल्म है, मेकअप का इल्म है, ड्रेसिंग का इल्म है, कुरान का इल्म नहीं, इमाम ज़माना का इल्म नहीं है। सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करेंगे तो फिर हमारे भी इल्म की जो कैफियत होती है वो परवाज़ है, रूह को इतना हल्का कर देती है। इल्म जब इंसान के अंदर, इल्म में खुदा हमें इल्म आलिम बनाए, हमें आलिम बनाए, जाहिल ना बनाए। हम अली के चाहने वाले हैं, और इश्क मौला अली खुद फरमाते हैं, वो शहर जिसके खदो खाल का सिंगार है इल्म, वो शहर जिसकी महकती हुई बहार है इल्म, वो शहर जिसके खंबर और फिजा कभी बेकार है इल्म। यानी इनके घर की कनीज का इल्म। ये देखो, वो मरियम थी जो रोटी मंगाई, और ये कनीज ज़हरा है जो रोटी भिजा रही है। ये इल्म और इरफान की कैफियतें हैं। छोड़ छोड़ के दुनिया इनके दर पे जितने आए हैं। सलमान ने अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, बिकते बिकते बाजारों में, बागों में बिकते बिकते यहाँ आ गए। आप देखिए, हमें भी इमाम ज़माना की तरफ कुछ छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना है। इसके बाद 2-4 अशार फिर मसाइल की तरफ आऊंगी। छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना है। हमारे अंदर का ईगो को मानना है, हमारे अंदर की आराम पसंदी, आराम तलबी, उनको जिनको यहीं पे जो कहता है कि ये दुनिया उसकी अपनी है, यहीं रहेगा तो वो करे आराम। आराम हराम है एक मुंतज़िरा के लिए। बहुत काम करना है हमें, बहुत काम करना है, बहुत एक्टिव रहना है हमें, बहुत सारा कुछ सीखना है हमें तसव्वुरात की दुनिया में यूसुफ ज़हरा के इश्क को बसाना है, उनके लिए जान लुटाने का जज्बा पैदा करना है। या लैतनी के झूठे दावे नहीं चाहिए, सच्चे दावे चाहिए। या लैतनी कह देना आसान है, फौजन अजीमा पे फायज होने की तमन्ना करना चाहिए। वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब अक्सर शैतान हमको ये कहे कि डिसअपॉइंट करता है अजीजम, कि जब आएंगे ना तब देख लेना, तब हम रहेंगे या नहीं इसकी क्या गारंटी है। घर में रहेंगे या खबर में रहेंगे। मौत तो किसी से वफा नहीं करती। जीते जी सब गले लगाते हैं, मरते ही घर से लेके जाते हैं। जीते जी सब गले लगाते हैं, मरते ही घर से लेके जाते हैं। झूठे दुनिया के सारे नाते। कौन किसकी लहर लगाते हैं। तैयारी हमें करनी है, हमें ही जाना है। और कोई डर डर के जाना नहीं है, खुश हो के जाना है, बेशक तैयारी करके जाना है। इंतजार यूसुफ ज़हरा की शम्मा लेके जाना है। कानों को इस तरह पाक रख के वो जाल हक की सदा सुनने की तमन्ना लेके जाना है। किसी की खबर बड़ा महल है तो किसी की खबर 2 गज की है। पता है आपको, खबरें एक जैसी नहीं है। जैसे घर एक जैसे नहीं होते, किरदार एक जैसे नहीं होते, सूरतें एक जैसे नहीं होती, वैसे भी अंदरूनी कैफियत एक जैसी नहीं होती। जिसका अच्छा अखलाक होना, और खबर के लिए भी कितना अच्छा सरमाया है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात का ये सवाल खबर में नहीं रखा, खबर में रखा ही नहीं। बड़ी गौर करिए कि अहले बैत ने हमें क्या क्या नेमतें दी। और मेरे मौला अली मेरी जान कुर्बान है ना, मदीनतुल इल्म व अहल बाबूहा कह के रसूल अकरम ने जिसे बताया, वो जो तमाम इल्म रखते हैं वो अली ने हमें बताया। कितना करीम है मेरा मौला कि खबर की सवाल और हश्र के सवाल बता दिया। अगर कोई नहीं पढ़े तो हम क्या करें? क्या होगा? कबर में नमाज का सवाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अली वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे खजा नमाज रोजा करवा दे, क्योंकि दर्जे जो है वो बढ़ने वाले हैं, दर्जे बढ़ेंगे। खबर में सिर्फ 5 सवाल होंगे। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है, तेरा नबी कौन है, तेरे इमाम कौन है। सिर्फ 5 सवाल। और जिसने ये 5 सवाल कर दे दिए, दूसरों के जहां इमामत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, उनकी खबर क्या होगी। जहां 14 मासूमीन और बिलखुसूस वो, उनकी दर्जे सबसे ज्यादा अफजल क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मारिफत इमाम ज़माना, अफजल इबादत उम्मती, जिस दौर में और आप जिंदा है, इस दौर की सबसे बड़ी इबादत रसूल ने फरमाया, अफजल इबादत उम्मती बाद मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। इंतजार फर्ज, ऐसे ही नहीं, मारिफत के साथ पहचान है किसके इंतजार में मारिफत हो जाती है। ईरान की खवातीन बच्चों के लाशों पे, ये शहीद की माँ जो खुश होके चूमती है बच्चों की मैयतों को, क्योंकि उन्होंने मारिफत हासिल की कि वो तोहफा दे रही, मौला मैं करबला को समझ रही हूँ। हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम अभी उस लेवल पे बहुत बात, अभी पता नहीं कितना हमको टाइम लगेगा, पता नहीं। वो जो मारिफत के जीनों पे है वो बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अहले बैत से सीखा, इमाम हुसैन से सीखा कि बखा में फना का खतरा है और फना में बखाए दायमी है। जिंदगी को हम बचाने की कोशिश करते, कितना बचाओगे, एक दिन तो जाना ही है। इसको बेखौफ करो, इसको बताओ आ मौत आ, तो आएगी तो मैं अली को देखूंगी ना।
मैं कहाँ घबराती हूँ मौत से। मौत हमारे लिए ये वक्त नज़ा लबों पे रहा या अली मदद, और खब्र में भी कह के उठा या अली मदद। शौकत मेरी लहत में ये मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। सिफ्त जाफर के हसीन जुमले हैं। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन ना मदो, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। मुलाकात अली है मोमिन के लिए मौत। और जो वक्त ईमान के मुंतज़िर बन के दुनिया से उठते हैं उनके लिए तो मैं हमेशा यही जुमला कहती हूँ कि क्या मोहब्बत है मदीने से चले आए मदाइन अली सलमान के लिए, सलमान फारसी के लिए। तो ये वाकई हमें क्या बताते हैं अजीजम, हम पढ़े लिखे लोगों ने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब कुछ है, अगर नहीं है तो इसको बचाने के लिए उन्होंने पीछे है। क्या कहा, क्या बता रहा है ये इंसिडेंट, ये वाकया क्या बता रहा है। अगर तुम हुज्जत खुदा की गुर्बत में तुमने जिंदगी गुजारी, तुम कहीं भी मरो तुम्हारा इमाम आएगा जनाजे में, बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर सिर्फ आए नहीं, इधर कैफियत ये है कि उठ के सलाम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहा नहीं सो जाओ अब ये आदाब खत्म हो चुके हैं। देखिए इसकी कैफियत है, देखिए ये जिंदगी के फलसफे को जानिए। ये जिंदगी ऐसी ही नहीं है। और मेरे मौला अली का जुमला ले लो, हाथ जोड़ के मेरी कौम की बेटियों बुरा नहीं मानना, इन आंखों से नहीं पढ़ती ना तो नहीं बताती। मौला अली कहते हैं आखिरी जमाने में गौर फिक्र ज्यादा करो, खामोशी ज्यादा। मौला अली ने इमाम जमाना कहते हैं खामोशी ज्यादा रखो, गौर फिक्र ज्यादा करो, और अपने घरों को जहाँ खबरस्तान मत बनाओ अपने घर में। आज हमारे घर खबरस्तान बने हुए, हमारा घर सजा हुआ है लेकिन हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला नहीं है। हमारे घर में बड़ों के लिए इज्जत नहीं है, हमारे घर में बड़ों से बैठ के बात करने वाले नहीं है, हमारे घर में बड़ों से प्यार करने वाले नहीं है, हमारे घर में बड़ों की पेशानी चूमने वाले नहीं है। खिल्लत होती चली जा रही है। जिनकी पेशानी चूमना काबे की चौखट चूमना है। बेशक ये एक बात की साले सवाब की मजलिस है ना, और माँ का तो बहुत जिक्र होता है। मैं क्या बयान करूँ कि बाप क्या होता है, और वो बाप कि जिसने बहुत बार जब मुसीबतें पड़ती है ना बेटी के लिए बाप क्या है, मैं क्या बयान करूं। जब मुश्किलें मुझे सताती है ना मेरे बाबा मुझे बहुत याद आते हैं। बाप क्या है, घर की छत कहा गया करती बाप को। दिन भर जो धूप में रह के अपने अफराद खानदान को छांव में रखने से बात कहते हैं। दुनिया में ऐसा रिश्ता, बस दो जुमले में बाप के लिए बोलूंगी, फिर थोड़ा सा करबला लेके जाऊंगी आपको। ये गौर करें, जिनके बाप है ना, जिनके माँ बाप है, माँ बाप से 3 गुना पहले है। माँ पूरी रिश्ते कवर कर लेती है लेकिन बाप को ये सलाहियत नहीं है। माँ को गुस्सा दिखाना आता है, माँ को प्यार जताना आता है, माँ को नाराज होना आता है, लेकिन बाप को ये सब नहीं आता है। बाप गुस्सा छुपाता है, बाप प्यार छुपाता है, बाप तकलीफें छुपाता है। जेब खाली हो बच्चा कहीं ये चाहिए तो वादा कर लेता है। बाप की अजमत को खुदा हमें समझने की तौफीक इनायत करो। बिलखुसूस बेटियों के लिए बाप, अल्लाहु अकबर। जब बाबा को देखती है ना बेटी, और दिन भर की थकन बेटी को देखे, अब जब बेटी आती है, बाप जैसे दूर काम से आए और बेटी ने आके बाप से गले लगी बेटी, तो बाप के दिल को ऐसी ठंडी हवा का एहसास हुआ है। बेटियों को देखता है ना बाप, तो उसकी ना थकन ही दूर हो जाती है। कभी बाप बेटियों के लिए क्या होता है, कभी दोस्त बन जाता है, कभी बॉडीगार्ड बन जाता है, तो कभी खिदमत गुजार बन जाता है, स्कूल को उंगली पकड़ के ले जाने वाला, अपने बच्चों के लिए हर किस्म की चीजें लाने वाला। बाप के अलावा कायनात में ऐसा रिश्ता और किसी का नहीं। होंगे रिश्ते बहुत क्लोज जो ये कहे हर रिश्ते में जलन है, लेकिन बाप के रिश्ते और बेटी और बेटे के रिश्ते में जलन नहीं। अगर बहन ज्यादा पढ़ ले दूसरी बहन को अंदर से चुभन होने लगती है, अगर भाई तरक्की कर ले दूसरे भाई को अंदर से जलन होने लगती है। वाहिद बाप है वो कि जो कहता है बच्चों आओ मेरे खांधे पे चढ़ो, मुझसे आगे बढ़ जाओ, मुझसे आगे बढ़ जाओ। बाप और बेटी का रिश्ता, किसी शायर ना जाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इमाम ज़माना जुम्मे का दिन है। मौला आपकी
अल्लाह के दिन कल निजाम है बड़ा आइए बोला या अली आइए हम आपको गुस्सा दे रहे हैं बेटी का बहुत बेटी जिसने कहा गया बेटी जनाजे की रौनक है और जिनकी बेटियां नहीं होती उनके जनाजों में रौनक नहीं होती ज़हरा यतीम हुई है सरदारों मदीने में। मैं तीनों बेटियों की यतीमी पढ़ना चाहती हूँ। मदीने में ज़हरा यतीम हुई, किसी ने आके पुरसा नहीं दिया। रोज पूछती रही यानी मैं यतीम हुई अबुल हसन, कोई मदीने वाला मुझे पुरसा नहीं दिया। अली कहते बीबी आ जाएंगे चेहरों आ गया, कोई पुरसा देने वाला नहीं आया। आप जो देखा अली ने अपना अमामा खोल के जमीन पे बिछा दिया, कहा मोहम्मद की बेटी किसी ने तुम्हें पुरसा नहीं दिया ना, मैं अली तुम्हें पुरसा देता हूँ। आजादारों ये ज़हरा की यतीमी है, रोने पर पुरसा तो नहीं दिए बल्कि कहे ज़हरा से को दिन में रोए या रात में रोए। एक और बेटी है, बेटियां यतीम हुई, यहाँ इकलौती बेटी है, लेकिन जिनके जितने बेटियां ज्यादा जनाजे में उतनी रौनक ज्यादा। वतन से दूर कूफे में जब अली की बेटियां यतीम हुई, अज़ादारों 18 बेटियां 18 बेटे, लेकिन बड़ा रोने के लिए बेटियां रोई तो भाइयों ने सहारा दिया, बीबी ना रो, बीबी ना रो, बीबी मैं हूँ हसन ज़ैनब को संभाल ले, हुसैन संभाल ले। कोई पाबंदी नहीं रोने पे, रो बीबी हम है ना रो, हम सहारा देंगे। देखो हमारे चेहरे में बाबा के चेहरे को देखो, लेकिन हाय सकीना, हाय हुसैन की बेटी 3.5 बरस की यतीमा, जब हुसैन जा रहे थे आगे बढ़ के दामन को जाना, बाबा जा रहे हो थोड़ा पानी पिला के चले जाओ। हम तुम्हें पानी पिला देते हैं, हम साकिए कोसर के बेटे हैं, ठोकर मारी, एक रिवायत है चश्मा निकला, लेकिन ऐसे में आवाज आई ज़बान अर्श की तरफ। सकीना बीबी ने देखा ज़बान प्यास की शिद्दत से बाहर है, कहा बाबा ये कौन रो रहे हैं? कहा सकीना तुम पानी पी लो ना, तो इन्हें पानी नहीं पिला सकती, ये तुम्हारे नाना की उम्मत है सकीना। अज़ादारों जिस शहजादी की जुबान पे कांटे आ गए थे, उन्हें वो बीबी ने मैदान महशर में पानी हमें पिलाने के कारण कहा मैं प्यासी रह जाऊंगी, लेकिन मैं जब की उम्मत को पानी पिलाऊंगी। नींद आएगी जब आपकी भूख होगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी भूख होगी बाबा, मैं रात को मंदिर में चली कहा वो किया। शहादत नहीं, मैं बेटे की बेचैनी पढ़ना चाहती हूँ। जो कहा जब रात आई बेटा बाना मख्तल में चली आई है, मासूम सकीना। अज़ादारों जब चली मेरी शहजादी कहती हुई चली बाबा कहाँ हो बाबा, नशेब से आवाज है इलाहिया इलाहिया अज़ादारों तसव्वुर करें, इस दर्द को समझे। दुनिया में किसी का बाप मरता है तो बच्चियों को कोई नहीं मारता, जाके खामोश बैठ जाओ, कोई नहीं कहता ना रो, अरे ये सकीना तमाशा करे। जब कहा बाबा जुल्फों में हाथ डाल के तमाचे मारे। दुनिया में हम देखते हैं अगर कोई बच्ची बाप के लिए रोती है आगे बढ़ के सीने से लगाते हैं। अज़ादारों हुसैन की बेटी का सीना औरती को हाथ से बांध दिया गया। जब कोई रोती है बेटी तो आगे बढ़ के पानी पिलाते हैं। आओ तसव्वुर करो, जानवरों को पानी पिला रहे हैं, सकीना को पानी दिखा के जमीन पे बहा रहे हैं। अल्लाहू अकबर।
اللہ اکبر، کیا غربت ہے، کیسے سہا میری شہزادی نے، کیسے یہ برداشت کیا عزاداروں نے مظلوم کربلا۔ بیٹی جب روتی ہے تو سارا گھر روتا ہے، بیٹی باپ کے جنازے پہ جب روتی ہے، بس آخری جملہ ہے، دنیا کی بیٹی میں اور محمد کی بیٹی میں فرق یہ ہے، دنیا کی بیٹیاں روتی ہیں پھر دھیمے دھیمے دنیا میں لگ جاتی ہیں، پھر جب برسی ہوتی ہے روتی ہے، جب یاد آتی ہے، لیکن آؤ مدینے میں زہرا اتنا روئی کہ کوئی ان کو روک نہ سکا۔ جب شکایت آئی تو کہا ان سے کہہ دو میں رونے کو بند نہیں کر سکتی، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں تو مہمان ہوں۔ عزادہ زندہ رہی تو رونے نہیں دیا، ہائے قبر میں بلڈوزر چلا دیا، ہائے کسی کی ماں مر جائے یا باپ مر جائے قبر تو ملتی ہے۔ میرا امام زمانہ جب دیا رضا کی طرف میں ہائے میرے مولا کی اللہم آجر ولی کل فرج، اللہم آجر ولی کل فرج۔ ایک اور مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔